آج کے شو میں صوبے این ایف سی کے نام پر وفاق سے کھربوں روپے بٹور رہے ہیں. صوبوں میں رقوم کی تقسیم کا معاملہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے سنگین سوالات اٹھا دیے. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. این ایف سی ایوارڈ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اگر آپ کہیں تو ہماری وفاقی حکومت کی پرفارمنس کو ہم سوالات تو اٹھاتے ہیں کہ حکومت یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی. حکومت کے پاس اسکیل کتنا ہے, جو فسکل اسپیس ہے وہ بچتی کتنا ہے, جو ٹیکس ریونیوز آتے ہیں صوبوں کو 57.5% دینے کے بعد, یہ سوال ہم جو ہے اس وقت اکثر نہیں اٹھاتے. اب بات یہ ہے کہ صوبے جو اگر آج سے 10 سال پہلے 2010 میں این ایف سی 7ویں این ایف سی ایوارڈ سے قبل اگر ان کو 650 ارب روپے ملتے تھے تو آج پچھلے سال صوبے کو 2.5 کھرب روپے ملے, تقریباً 2 کھرب روپے زیادہ صوبوں کو ملے. اگر پنجاب کو اگر آپ بات کریں 325 ارب ملتے تھے 2010 میں ملے تھے, تو اب اس دفعہ ان کو 1.2 کھرب روپے ملے. صوبے سندھ کی بات کریں ان کو اگر 197 ارب روپے ملے تھے 2010 میں, وہ بڑھ کے 630 ارب ہو گئے پچھلے سال, تقریباً 220% کا اضافہ. اور سوال پوچھا جائے کہ رقم کدھر خرچ ہو رہی ہے اور کیسے خرچ ہو رہی ہے, نہیں چلے وفاق کے پاس کچھ نہیں بچ رہا وہ تو اپنی جگہ, لیکن عوام کا بھلا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم اٹھائیں گے. بلوچستان کی بات کریں, بلوچستان کو 40 ارب ملتے تھے, اب 291 ارب, تقریباً 300 ارب کا اس وقت جو ہے ان کو جو لاسٹ این ایف سی میں ملے ہیں, 628% کا اضافہ. اگر خیر پختونخوا کی بات کریں 80 ارب سے ان کا شیئر بڑھ کے 400 ارب ہو گیا, 400% کا اضافہ. اب یہ سارا پیسہ اربوں کھربوں روپے ہے جو صوبوں کو وفاق دے رہا ہے, اور اس کے پاس کیا بچتا ہے یہ سوال ہے. لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے, جو ان کا فسکل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی جو صوبوں کو ملی ہے انڈر دی 18 امینڈمنٹ, یہ اس کا درست استعمال ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے ناظرین. اور میرے خیال ہے گورننس کے لحاظ سے پاکستان کے لیے سنگین ترین سوال ہے. اور یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے بین الصوبائی رابطہ, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آپ نے ریز بھی کیا اس معاملے کو, ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں سے معاملہ آگے بڑھے اور کیسے, یہ سوال انہی سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ سنگین ہے, لیکن یہ پیسہ خرچ کدھر ہوا ہے سارا, یہ اربوں کھربوں روپے جو صوبوں کو ملا ہے, یہ سوال ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں, آپ لوگوں کے ذہنوں میں کدھر گیا پیسہ یہ سارا. جی بہت شکریہ سر. ویسے تو یہ سوال صرف پرائم منسٹر عمران خان کے نہیں ہیں. یہ جب بھی کوئی حکومت, اگر پچھلی حکومت کو دیکھیں کہ جب حکومت میں ہوتی ہے تو سوال یہی ہوتا ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے اگر آپ جو فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کا دیکھ لیجئے, اس وقت کے فائنانس منسٹر کا دیکھ لیجئے کہ کیا سٹیٹمنٹس آئی ہیں, اور سب نے یہی بات کی ہے. اور اس کے بعد لیکن جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو موقف دوسرا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بڑی ایک افسوسناک ہے, کیونکہ ایک سارا جب کنکرنٹ لسٹ ڈیوالو ہوئی ہے اور جب صوبوں کے پاس چلے گئے, اور اتنا بڑا جس کے لیے میں تو بہت اس وقت, کیونکہ ایز اے اسپیکر میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ 18ویں ترمیم, وہ صوبوں کے اختیارات, اور جو میں نے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی تھی 26 ممبرز کی, اور خاص طور پہ اس صوبے کو زیادہ نمائندگی دی میں نے کہ جہاں پہ احساس محرومی تھی. تو پرپس یہی تھا کہ ایک تو آپ کو پروونشل اٹانومی ہو, اور کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ جو ریسورسز ہیں اس ملک کے, کہ ہم گراس روٹ پہ لے جائیں تاکہ ان کے لیے کہ وہ ایکسس اور ان کی بھلائی کے لیے, اور ان کو ایٹ دا ڈور سٹیپ وہ ساری فیسلٹیز ملنی چاہیے. اس کے تحت آپ کیونکہ فگرز پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ 2.5 ٹریلینز کھرب روپے یہ صوبوں کو گئے ہیں, اور یہ تو ایک سال کی بات کر رہے ہیں. میں اگر اٹھاؤں اس کو, آپ 2010 کے بعد جب یہ آ گیا 18ویں ترمیم, اس وقت کے بعد سے لے کے آج تک 10 سال سے اوپر ہو گیا کہ یہ مستقل ایک کھرب یا 1 کھرب سے تھوڑا کم, میں اگر صرف سندھ صوبے کی بات کر لوں تو ان کے پاس جا رہا ہے. اور اگر لاسٹ اس میں 630 ارب روپیہ تو سیدھا فیڈرل گورنمنٹ سے ٹرانسفر ہوا, اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو ریسورسز جو کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن کو آپ کے دیے گئے وہ بھی آپ کے پاس آیا جو کہ 300 ارب سے اوپر تھا. تو 1 کھرب روپیہ اگر صوبہ سندھ کے پاس جاتا ہے, مجھے ایک سیکٹر بتا دیجئے, ایک ڈسٹرکٹ بتا دیجئے, کیا لوگوں کو صاف پینے کا پانی مل گیا؟
क्या उनकी सेहत बेहतर हो गई, या उनकी एजुकेशन बेहतर हो गई, या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, या उनकी एनवायरनमेंट बेहतर हो गई, या उनके स्पोर्ट्स बेहतर हो गए? एक मुझे चीज़ बता दीजिए कि जो अवाम की भलाई के लिए किया गया हो, और 1 खरब रुपया 1 साल में अगर एक सूबे में गया, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ नहीं मिला। ये भी नहीं मिला जो उनका हक था, जो ऑयल एंड गैस के मद में सूबे के पास पैसे जाते हैं और ये हुक्मरानों के हद तक रह जाते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट बदीन तक नहीं गए, डिस्ट्रिक्ट घोटकी तक नहीं गए, और जहां जहां ये ऑयल एंड गैस के हवाले से है कि निकलती हैं, जो उनका राइट है। ये फेडरल गवर्नमेंट से तो ये बातें करते हैं। आपने जिस तरह कहा कि आप उस वक्त स्पीकर भी थी, और जब मामला ये सामने आया असेंबली में, तो उस वक्त तो ऑब्जेक्टिव ये था, फिर उसमें एक बात थी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका। तो अब इसकी इन्फोर्समेंट के लिए या आप समझती हैं कि इसको इस पूरे लॉ को ही इसको अमेंड होना चाहिए, या इसमें कोई इसकी इन्फोर्समेंट सही होनी चाहिए? व्हाट इज द सोल्यूशन? अब क्या सोच रही है वफाकी हुकूमत? देखिए, हम बहुत अफसोसनाक जो इस वक्त की सूरत हाल नज़र आ रही है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि स्टेट विद इन अ स्टेट है, और एक नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है 18वीं तरमीम का अपने आप को एक बिल्कुल कि हम किसी को आंसरेबल नहीं है, हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है, हम 1 खरब रुपया लेंगे लेकिन हम किसी को जवाबदेह नहीं है। तो उसमें, और क्योंकि आर्टिकल 140A जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की बात करता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर की बात करता है, और वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो बने, जिस तरह सूबा सिंध में 2013 में, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात करता है। अब जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुई, आपने तो जो इख्तियार लोकल बॉडीज के पास थे, लोकल गवर्नमेंट्स के पास थे, आपने तो वो भी उनसे छीन लिए। कौन से इख्तियार आपने लोकल गवर्नमेंट को दिए? तो वो इख्तियार भी आपने वापस सूबे के पास ले लिया, जो कि इट्स अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट, इट्स अ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हो रहा है। और इस तरीके से कि हम ना किसी को जवाबदेह होंगे, और मैं प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं है हम तो। और अभी अगर आप पिछले दिनों अगर आप गवर्नेंस का या महंगाई का, जिसका पूरा डायरेक्ट जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सूबों पे आती है। आप रिसोर्सेज लेंगे, सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको चाहिए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। आप ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि लोगों को आटा सस्ता मिले, आप वीट प्रोक्योर करेंगे, लेकिन आप वो जिस वक्त सिंध के अवाम महंगा आटा खरीद रहे हैं, आप उसको दबा के नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि चूहे खा लें जो इनके खास चूहे, लेकिन अवाम को ना मिले। वो गोडाउन में तो सड़के जाती है, और आज सुना है कि एक पुरानी वीट निकाल के अवाम को दिया जा रहा है, बीमार किया जा रहा है, और जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। तो मेरा ये इनसे सवाल है, और ये टोटल इसमें इस कोर्टों को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हो रहा, ना ये रिसोर्सेज नीचे दे रहे हैं, ना ये वो जो एक फिस्कल वो था, एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोकल गवर्नमेंट तक जाने की, ना वो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आज महंगाई है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूबों पर आती है, और उनको सूबों को जो वीट प्रोक्योर करते हैं, जिनके पास जो ये शुगर के है, और ख़ास तौर पर अगर सिंध गवर्नमेंट को देखें तो उस पर तो उनकी मोनोपोली है। तो क्या वजह है कि आज अवाम को ना आटा सस्ता मिल रहा है, ना शुगर सस्ती, चीनी सस्ती मिलती है, और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डाला जाता है। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी डॉक्टर साहब ये क्योंकि जो प्रोविंशियल टैक्स टू जीडीपी रेशो था उसको बढ़ाना था, वो बढ़ के 0.4 से 0.9% हो गया। आपका जो टैक्स कलेक्शन के भी कुछ इख्तियारात आपने सूबों को दे दिए अंडर द 18th अमेंडमेंट, उससे कुछ बेहतरी आई नहीं आई वो भी, लेकिन इतना कोई खातिर खा इस पर जो है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोविंसेस नहीं हो रहा है इस पर। अब आप समझती हैं कि ये मामला शुड बी सेटल्ड बाय द कोर्ट्स, या फिर आप द गवर्नमेंट शुड टेक एन एक्शन? कुछ इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो सर्विसेज टैक्स था, जो पूरा का पूरा वो अब सूबों के पास आ गया,
اور اس سروسز ٹیکس کے انڈر، اور کیونکہ وہ ایٹ سورس بھی کٹ جاتے ہیں، دیکھیں جتنی بینکس ہیں وہ بھی سارے ہیڈ کوارٹر آپ کے کراچی میں ہیں، اور ایٹ سورس وہاں پہ کٹتا ہے، اور انفراسٹرکچر سیس جو ہے وہ بھی ایٹ سورس کٹتا ہے. اور اگر اس مد میں آپ دیکھیں تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی اباؤٹ 300 ارب، ویسے تو 267 کچھ ہے اور باقی اور ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیجئے جو انفراسٹرکچر سیس میں انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، کیا وہ انفراسٹرکچر پہ لگا؟ ایک فلڈ آئے اور آپ نے گاؤں کی تو آپ پوچھ لیں، میں یہ کہتی ہوں کہ وہاں تو کوئی اللہ کے آسرے پہ لوگ جی رہے ہیں، لیکن کراچی جیسے شہر کی جو حالت، جو ریونیو، اس کا بھی انفراسٹرکچر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کولیپس تھا، اور کتنا استعمال ہوا انفراسٹرکچر پہ، کتنا آپ نے جو ہے یہ سروسز ٹیکس کے جو بھی پیسے آئے، اور ایٹ سورس آپ نے تو کوئی اس میں انکریز نہیں لائے، اتنا نامنل آئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سارے صوبوں کا آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھ لیں، وہ ابھی تک بھی 1% یا 1% کے برابر ہی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں کیا بہتری آئی ہے؟ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس وقت صوبوں کا اگر سب کا ملا کے دیکھیں گے it is 1% اور probably even less than 1%. تو آپ نے کس طرح، آپ نے تو جنریٹ بھی نہیں کیا، 1% کے برابر کہہ لیں، لیکن آپ نے تو وہ بھی اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن آپ نے کوئی ایٹ سورس کاٹ کے صرف آپ نے وہی پیسے کہ جو آپ کو ایک بینیفٹ ملا فیڈرل سے نیچے آیا. اب آپ یہ ٹریجڈی دیکھیے، ظلم دیکھیے کہ مقصد اگر آپ کچھ کہتے ہیں کہ سارا پریشر کہ 18ویں ترمیم پہ نہیں، یہ چیز ہمارا رائٹ ہے، تو آپ کا رائٹ نہیں ہے، عوام کا رائٹ ہے. یہ حکمرانوں کی جیب میں جو پیسے جا رہے ہیں اور عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اس کے لیے بالکل سوچنا پڑے گا. اور آپ یہ بتائیے کہ اگر جب جتنے ڈپارٹمنٹس کنکرنٹ لسٹ کے تحت اگر ڈیوالو کر دیے گئے تھے جو 2008-10 میں جب 18ویں ترمیم آئی، لیکن آپ نے ان ڈپارٹمنٹس، انہی منسٹریز کو دوبارہ فیڈرل لیول پہ بھی ریوائیو کر دیا. آپ نے ایجوکیشن بھی ریوائیو کر دی، آپ نے کلائمیٹ بھی ریوائیو کیا، آپ نے جتنی کوئی 8-9 منسٹریز ہیں جو دوبارہ، اور اس کے بعد آپ بلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں. دیکھیں اسٹیٹ رسپانسبلٹیز ہیں، اگر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ پہ کیا، کیونکہ آج آپ سگنیٹری ہیں ایس ڈی جیز کے، آپ سگنیٹری ہوتے ہیں، جتنے یہ 17 گولز ہیں آپ کے، آپ اس کے سگنیٹری ہیں، وہ ایز اے پاکستان آپ سگنیٹری ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر پیسے اور ریسورسز آپ نے صوبے کے پاس دیے، لیکن اگر وہاں تعلیم کا ستیہ ناس ہو رہا ہے، تو میں کیسے اس کمٹمنٹ کو پورا کروں؟ فیڈرل گورنمنٹ کیسے اس چیز کو کرے؟ یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ مجھے، کیونکہ ایک تو یہ بات بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ایک تو یہ کہ آپ نے اوور پاور کر دیا ٹو دا پروونسز، ان کو فسکل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دے دی انڈر دا 18th امینڈمنٹ، اینڈ دین دے آر پولیٹیسائزنگ دس، کہ وہ جو فنڈز کا استعمال کر رہے ہیں وہ ان علاقوں میں فنڈز کا استعمال ہو رہا ہے جہاں ان کی ووٹ بینک ہے، اور جہاں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے ان علاقوں کے اندر وہ اس فنڈز کا استعمال نہیں کر رہے. اب آپ جو بدین کی بات کر رہی ہیں، یہاں کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اربن رورل جو بھی آپ دیکھ لیں اٹھا کے، تو یہ سیاست بھی اس میں بیچ میں آ گئی ہے، یہ بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں 18ویں ترمیم میں کیا کیا ہم نے ڈسکریشن سے سارے پاورز انسٹیٹیوشنز کو ٹرانسفر کیے. ہم نے کہا اداروں کو اور پارلیمنٹ کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نے صوبے کو بھیجا تو کیونکہ وہ ایک ٹرانزیٹری فیز تھا، میں ایز اے اسپیکر جب آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2008 سے ہم ایک ڈکٹیٹرشپ سے سویلین اس پارلیمنٹری سسٹم کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیونکہ صرف آپ اگر صوبے کو دے دیں اور نیچے پاورز نہ ٹرانسفر کریں تو آپ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے گئے ہیں. آپ کا ٹوٹل ہی ایک نہ عوام کو اس کا فائدہ ہوا، نہ وہ 18ویں ترمیم کا آپ نے بات کی کہ جہاں آپ کا ووٹ بینک ہے اور جہاں نہیں ہے کہ وہاں نہیں مل رہا. میں یہ بتاؤں ویسے تو پورے سندھ کی عوام کو کسی کو کچھ نہیں مل رہا، اکراس دا بورڈ نہیں مل رہا، چاہے وہ کس نے کس کو ووٹ دیا. لیکن اگر آپ نے ڈسکریشنری اپنی ڈسکریشن پہ رکھا ہے اور آپ نے صرف ایک اپنا بنائیں گے اور ایک پارلیمنٹ کو جو ربر سٹیمپ کی طرح آپ یوز کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہ کہ نہ پروونشل فائنینس
फाइनेंस कमीशन देंगे, आपका काम था कि उस डिस्क्रेशन से इंस्टीट्यूशन के कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देते ताकि वो हर डिस्ट्रिक्ट पे एक फॉर्मूले के तहत होता ताकि वो आप उसके मुताबिक वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते। सेकेंडली, नेशनल फाइनेंस कमीशन में आपका 10% है लेस डेवलप्ड एरिया पे खर्च करने का। क्या आप बताइए कि बदीन जहाँ पीने का साफ पानी ना हो, जहां पे आप जाके देखिए कि जानवरों से बदतर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप ना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देंगे, ना आप लेस डेवलप्ड एरिया की मद में वहां कुछ देंगे। आप हमारी तरफ गैस का प्रोडक्शन बोनस भी आप रखेंगे, रॉयल्टी भी आप रखेंगे, सारे फंड्स आप तो देखिए ये बड़ी ज्यादती है। ये नहीं है स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन की, ये नहीं थी स्पिरिट 18वीं तरमीम की, और इसको बहुत जरूरी है कि देखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त मैटर उठाया है जिस पे मैं समझती हूँ, क्योंकि इस वक्त उन्होंने इंटरप्रेट भी करना है, लेकिन उन पे ये बंद है, क्योंकि अगर जस्टिस हानी की जो वाटर कमीशन की एक बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनकी रिपोर्ट जो उस वक्त हालात थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट पेश की थी कि आज हम कैसा जहरीला पानी पी रहे हैं। जहां से चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, लाड़काना से जिनका लीडरशिप के ताल्लुक है, अगर वहां के बच्चे जहरीला पानी पी रहे हैं तो आज, और उस कमीशन की रिपोर्ट को भी आए हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, क्या उसके ऊपर कितना अमल हुआ है ये भी मुझे बता दीजिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस चीजों को देखे? देखिए आज जानवरों से बदतर जिंदगी सिंध के लोग अवाम गुजार रहे हैं, और मैं समझती हूँ उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि हम जवाबदेह नहीं है टू द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि हम जवाबदेह नहीं है इस पर टू द प्राइम मिनिस्टर। खरबों रुपए के फंड्स इस पर हैं, और ये जो 2.5 खरब रुपए ट्रांसफर हुए हैं, फिर अगर सूबे के वजीर ये कहें जी कि हम तो जवाबदेह नहीं है टू द प्राइम मिनिस्टर, देन व्हाट इज दिस? ये क्या कन्फेडरेशन क्या हो क्या रहा है? अच्छा फहीम साहब, इस एक ब्रेक के बाद सवाल का जवाब लेते हैं। बड़े अहम पर आज गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, शायद पाकिस्तान की गवर्नेंस के नहीं है, ये सबसे अहम मसला है जो सवाल उठ गया है इस वक्त। ये खरबों रुपए के फंड्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, और फिर ये सियासी इंतकाम और क्या क्या बातें आ जाती हैं जब भी इस पर बात होती है। तो ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में आपके सामने संगीन तरीन मसला पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से जो है वो सवाल उठा दिए। जो हमने बात की कि कितने पैसे इस वक्त मिले, खरबों रुपए जो सूबों को मिले, उसके बदले में जो टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट हुए वो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 67 बिलियन रुपीस थे अगर वो टैक्स रेवेन्यूज, यानी 67 अरब रुपए तकरीबन, वो बढ़कर जो हुए हैं वो तकरीबन उसमें 800% का इजाफा तो हुआ है, 600 अरब से ज्यादा के हो गए। लेकिन आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, पूरे मुल्क का टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो अगर 2010 में 10.1% था तो आज भी वो 11% से नीचे ही है। और प्रोविंशियल टैक्स टू जीडीपी रेशो जो था वो भी 0.4% था, तो अभी भी 1% से नीचे ही है, बिल्कुल 0.9% पे खड़ा हुआ है इस वक्त, नहीं हुआ 1%। तो सूबों ने किया क्या आखिरकार ये सारे पैसों का? इसकी तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए शायद, क्योंकि जो फहमीदा मिर्जा साहब बता रही हैं और जो बिलखुसूस हमने देखा है कि कुछ इलाकों के साथ मखसूस एक रवैया रखा गया है, ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है इस पर है जो सारे मामला सामने आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने बोला है फहमीद साहब, मैंने आपको एक इंटरव्यू में देखा, आपने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस बात पे आपने बोला था कि सीएम साहब कह रहे हैं कि आई एम नॉट आंसरेबल टू द पीएम, आपने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का होना चाहिए, ये क्या है इस पर? जी देखिए, जो एक सोच है पाकिस्तान की या कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की है कि आपने सूबों को वो पावर्स ज़रूर देने हैं, और वो पावर्स जो हैं कि ताकि आवाम के भलाई के लिए आवाम के डोर स्टेप तक जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है आवाम और स्टेट के बीच में, और वो उस हर लॉ जो बनता है वो आवाम की भलाई के लिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसका पर्पस आवाम की भलाई है, और जिसमें अगर आप देखें कि वो सारी जो भी पावर्स है वो तो एम्पावर करता है आवाम को,
लोगों तक उनको एम्पावर करना है, उन तक हमने रिसोर्सेज पहुंचाने हैं। लेकिन हम ये 18वीं तरमीम का ये नाजायज इस्तेमाल करते हुए इसको एक डिसफंक्शनल स्टेट बनाते जा रहे हैं और स्टेट विद इन अ स्टेट बनाते जा रहे हैं कि कैसे सीएम कह सकते हैं कि वो आंसरेबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, तो वो किसको आंसरेबल हैं? यकीनन अवाम को तो हम सब इलेक्टेड नुमाइंदे आंसरेबल हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हों, चाहे वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट में हो, सूबाई हुकूमत में हो, या देखिए व्हाट इज स्टेट, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया आर्टिकल 7 में कि स्टेट क्या है। स्टेट जो है वो नेशनल असेंबली है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल असेंबली है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल काउंसिल्स जो है, ये सब मिला के एक स्टेट बनती है। तो अब हमने कैसे काम करना है? हमने अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काम करना होगा और हर इदारा जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मुल्क के, वो हमारे पास पार्लियामेंट्री निज़ाम है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो मजलिस शुरा और उनके इलेक्शन से मतलब जो उसको वो करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आखिर आप अगर उनको आंसरेबल नहीं होंगे, आप अवाम को आंसरेबल नहीं है, तो आप यकीनन अल्लाह को तो आंसरेबल आप पता नहीं अपने आप को समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस बेदर्दी से अगर आप अवाम को ट्रीट कर रहे हैं या जो हालात हैं कि चूहे खा लें आपका अनाज लेकिन वो अब गरीब के बच्चे के पेट में ना जाए, आप स्टॉक करके रखेंगे कि उसकी कीमतें इतनी बढ़ जाएं और होल्डर्स को फायदा हो जो कि ये रखे बैठे हुए हैं इन्हीं के ही लोग, लेकिन गरीब आवाम तक ना मिले। और फिर बात करें आप कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी है, फेडरल गवर्नमेंट आप तो इस हद तक वो करते हैं कि जो एक मार्केट कमेटीज बनी हुई हैं वहां तक भी आपके अपने लोग मौजूद हैं, यानी आपके वहां भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी ताकि वहां से भी वो चंद पैसे निकाल सकते हैं, अगर लोगों का खून चूस सकते हैं तो वो भी चूस लें। जो महंगाई के हवाले से कमेटीज बनी होती हैं लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, प्रोविंशियल, वो क्या कर रही हैं? वो क्यों नहीं अपना रोल अदा कर रही हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर का राइट नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर से सवाल करे? लेकिन उनको लाजमी है उनके ऊपर कि वो ये देखें कि आज बदीन में जो है आटा 1200 का क्यों मिल रहा है, 20 किलो की थैली क्यों मिल रही? क्या ये तरीका है? अच्छा जी, हमने सारे ये जो टीयर्स है उनको मिलके काम करना होगा, ये अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काम करना है। ये बात तो भाई समझ में है और हमने डिटेल में बताया भी इस वक्त कि आपने खरबों रुपए की बात की है, तो हमारे जहन में वो भी आ रहा है जो करोड़ों रुपए सेनेट इलेक्शन में चल रहे थे, जो वीडियो सामने आई है इस वक्त। आप साबिक स्पीकर रही हैं कौमी असेंबली की, लास्टली चंद ही मिनट है, ये जो एक असेंबली में एक वाकया हुआ फरवरी में 4 फरवरी को, तो दूसरा अब जो ये पैसों का मामला चल रहा है इस पर, क्योंकि ये किस तरह पार्लियामेंट किस तरह रन हो रही है, दूसरी बात ये सेनेट इलेक्शंस में जो सामने आई है चीजें, इस पर होना क्या चाहिए इस पर एक्शन? देखिए बहुत मुझे तकलीफ होती है जब मैं पार्लियामेंट को देखती हूँ और मैं ये समझती हूँ, और क्योंकि जिस तरह का रोल किसी भी पार्लियामेंट को चलाने के लिए जितना अगर जिम्मेदारी हुकूमत उतनी अपोजिशन पार्टीज़ पे भी है, और मैं ये समझती हूँ आज वो दो में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को कहती हैं, बहुत डेमोक्रेटिक अपने आप को कहती हैं, कि उनकी पार्टीज़ के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं? आप 18वीं तरमीम में वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो उसकी सिग्नेटरी हैं, क्या आप पे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप इस पार्लियामेंट को अच्छी तरह चलाएं? वो इदारा जो जिसके सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है कि, और मैं ये समझती हूँ जिस तरह मैंने उसको एम्पावर करने की कोशिश की थी, मैंने एक टोन सेट की थी उस पार्लियामेंट की, मैंने एफर्ट की थी डिस्पाइट माई कैंसर, डिस्पाइट माई इलनेस, कि मैंने उसको कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया को नज़र आए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज कैसे काम करती है। लेकिन मुझे निहायत अफसोस होता है कि एक हॉस्टेज बनाया जाता है पूरे पार्लियामेंट को, और एक प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर यकीनन वो भी स्पीकर का डिस्क्रेशन है, और जिस तरह स्पीकर को एड्रेस किया जाता है, अगर
जो 4 फरवरी को हुआ, अगर आप उसमें देखिए, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जो शायद 6ठी दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किए? क्या इस तरीके से पार्लियामेंट चलेंगी? इस तरीके से आप जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं? उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज अगर मैं स्पीकर रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और कभी मैं अपने मफाद के लिए मैं उस पार्लियामेंट को इस्तेमाल न करूँ। मेरे घर पे अटैक हुए, मेरे ज़मीनों पे कब्जे हुए दिन दहाड़े, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में उस चीज़ को नहीं मैं लाई, और मैंने ये चाहा क्योंकि वह अवाम के लिए है। आज भी मेरी ज़मीनों के ऊपर जो वहाँ पे सिंध की लॉ एंड ऑर्डर है, और जिस तरह क्रिमिनल्स को ला के इर्द गिर्द बिठा दिया गया है चौकियाँ बना के, कि दिन दहाड़े वो फायरिंग करते हैं और गरीब हारियों को परेशान करते हैं, जिसकी रोज़ी उस ज़मीन से जुड़ी हुई है, उनको परेशान करते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में नहीं किया। आप एक प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप पूरे पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाया। आपने डे 1 से जो इस पार्लियामेंट बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं फहमीदा साहब कि आप स्पीकर भी रही हैं। मुझे क्योंकि इस वक्त आप एक साथ गुफ्तगू को इख्तिताम पे यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है, आपके बात करनी थी हमें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने संगीन सवालात उठाए हैं इस अहम तरीन मामले पर। हम आपको फीडबैक देने के लिए जो कंक्लूजन आपको देंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में संगीन तरीन सवालात गवर्नेंस के निज़ाम के ऊपर। NFC अवार्ड के तहत खरबों रुपए की तकसीम जो 2010 में 650 अरब थे, वो बढ़ के 2.5 खरब रुपए हो गए 2021 के माली साल में। और किस तरह से खरबों रुपए का ट्रांसफर जो हुआ, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन नहीं। ये सारे संगीन सवालात आज प्रोग्राम में उठाए हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।